Welcome to this August gathering. जैसा कि मन्ना जी ने बताया कि एक रीइन्वेंट जर्नलिज्म इन अमृतकाल, जैसा कि नाम ही बता रहा है, नेगेटिविटी चारों ओर भरी हुई है और इसमें एक पॉजिटिव जर्नलिज्म, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के आना, ये बहुत बड़ी बात है। और मन्ना जी ने ये काम बखूबी किया है, पिछले 10 साल से लगातार निरंतर कर रहे हैं ये काम। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री आरजेएस पीबीएच के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग हाउस के रूप में परिणति तक की यात्रा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्म ते संगोऽस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। Positive Media, Positive India, 9 years. The journey of JANAKI SANSTHAN RJS, afterwards known as RJS Positive Media, since its inception in 2015 to its present culmination in August 2023 as RJS Positive Broadcasting House. The JANAKI SANSTHAN appeared on the horizon of media in 2015 as a direct result of the vision of its founder, Shri Uday Manna, for endeavoring in various ways to assist contemporary Indian society to gradually emerge out of any darkness of regressive attitudes and ideas that are impediments to advancing towards noble objectives of holistic well-being of all strata of the people in a meaningfully modern sense. The groundwork for carrying forward the missionary zeal for the social work was been laid much earlier than 2015 by way of organizing get-togethers of like-minded people in different regions for discourse on socially relevant themes like education and health. Shri Uday Manna had the blessings of his parents, Shri Ramjak Singh, who retired as SDO, and Srimati Janak Dulari Devi for turning towards social work in earnest, even while performing his duties as a broadcaster in Akashvani. From 2007 onwards itself, various seminars of writers, poetic symposia, and programs for yoga practice were been organized and arranged from time to time. Not less important is the concern shown by Sri Uday Manna, especially as a Secretary, Working Journalists of India, BMS, when various workshops were organized for improving the skills, especially in the context of exponentially growing influence of social media that has brought the world together as never before. In this concern, Sri Manna had the wholehearted support of Sri Vijay Sharma, news editor of Hindi daily Sandhya Veer Arjun. Between May 2018 and August 2021, 163 bataks of different programs were organized with the media support of RJS. During the crisis caused by coronavirus, Manna ji commenced Uday Manna Facebook Live with the first program on 12th of May 2020. There were 150 Facebook Live episodes. RJS has also diversified into RJS Vani and RJS PBH podcast to spread the message of positivity in society. RJS Positive Media takes special pride in the fact that it has in its regular Sunday webinars on a wide range of issues needing societal deliberations, been giving homage to our known and not so known freedom fighters and martyrs in a series called Azadi Ki Amrit Gatha, especially since 14th August 2021, which was originally meant to last till the 75th episode, was then extended as suggested by RJS advisor Shri Bijan Kumar Mishra.
to last till the 150th episode, and this excellent example of Jan Bhagidari celebrated its 150th episode in August 2023. नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका थीम है आजादी का अमृत महोत्सव, और आजादी का अमृत महोत्सव बिना वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत के नहीं होता है। तो एक बार जोरदार लगाइए नारा कि आसपास यह आवाज जाए, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय हिंद। Thereafter, as advised by RJS advisor, it was decided to continue it in Amrit Kal till 2047. It gives us special pleasure to recall that during the progress of RJS Positive Media, as described above, the movement at one juncture had derived inspiration from Jinda Shahid, Sri M.S. Bitta, who guided Sri Manna to carry forward the message of Vande Mataram across the country to infuse the people with patriot fervor. This has been put into practice with all seriousness by RJS Positive Media, and as suggested by RJS Observer, Sri Deepchand Mathur, the usual greetings by RJSians have since been replaced by greetings with words Vande Mataram and Jai Hind. MS बिट्टा साहब का इस फैमिली में रहना अपने आप में इस देश का एक इतिहास बन रहा है। MS बिट्टा साहब बहुत सादर आमंत्रण आपको सुनने के लिए, निश्चित रूप से आप मुख्य अतिथि के रूप में। देश की राजनीति को बदलना, देश की पत्रकारी को बदलना, देश की पत्रकारी को वो सरदार पटेल के वक्त, लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त की तरह लाना, ये दो चीजें जब तैयार होंगी तभी राष्ट्र मजबूत होगा, नहीं तो राष्ट्र हमारा मजबूत नहीं हो सकता। वक्त आएगा, वक्त चले जाएगा, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, पर मातृभूमि कब मजबूत होगी? मातृभूमि की रक्षा कौन करेगा? Over the years, many public figures who have contributed to our society in some way have been associated with the RJS webinars and other programs. Some glimpses whereof are shown. हिंदी पत्रकारिता के इस महादिवस पे आप सबको मेरी तरफ से और AAFT यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मैं मन्ना साहब का खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आरजेएस मीडिया के साथ मैं कई सालों के साथ जुड़ा हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि भारत सरकार ने मुझे नेशनल चेयरमैन नियुक्त किया है मीडिया और एंटरटेनमेंट अपग्रेडेशन कमेटी का, जहां मैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर तकरीबन 60 से भी ज्यादा अफसरों के साथ काम कर रहा हूं, जहां हम लोग पूरे देश की कंप्लीट मीडिया, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यू मीडिया, OTT, थीम पार्क, इवेंट्स, मीडिया एजुकेशन, पायरेसी, इन तमाम 10 सेगमेंट्स को लेकर हम लोग अपग्रेडेशन कमेटी हमने बनाई है। उसका उन्होंने मुझे चेयरमैन नियुक्त किया है और बहुत जोरों के साथ काम हो रहा है। आरजेएस परिवार के सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी जिनके नाम पे आज ये नेशनल साइंस डे है, और सीवी रमन उनसे भी मैं मिला, और जब मैं उनसे मिला और मैंने नमस्कार किया और बधाई दी, वो मेरे प्राइज कहने लगे, आई एम नाउ वेटिंग फॉर माय सेकंड नोबेल प्राइज फॉर द वर्क दैट आई एम नाउ। देखिए, इतना कार्य करने के पश्चात भी, इतनी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ। Almost 600 thinkers, scholars, professors, media personalities, environmentalists, and others have appeared in RJS deliberations and discourses. RJS has also not only covered events like Delhi Book Fair, World Book Fair, and Sahit Academy Sahityotsav, but also exploring spiritual paths by undertaking RJS spiritual journeys and other journeys to know our compatriots face to face and to understand their dreams and aspirations better. Journeys were undertaken by RJSians led by the founder. These journeys at intervals are a dimension of RJS to be in direct contact with our brothers and sisters, to have direct insight into ways of living, their cuisine, dress, spiritual life, their customs, festivals, ancient heritage. The RJS PBH, so named on the suggestion of Sri Praful Bhai Sheth and Ranjan Ban,
was inaugurated virtually by Professor Dr. Sanjay Dwivedi, former DG, IMC New Delhi, in a RJS webinar. एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है पॉजिटिव इंडिया को लेकर, और इसमें हम लोग आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण भी मुख्य अतिथि के द्वारा होगा। और इतने श्रेष्ठ जनों के बीच में उदय कुमार मन्ना जी ने मुझे बिठाया है और मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और सकारात्मक भारत तभी बनेगा जब सकारात्मक संवाद होगा, सकारात्मक पत्रकारिता होगी, सकारात्मक मीडिया होगा। आज इस सकारात्मक मीडिया के लिए आप एक स्टूडियो का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सूचना भी बहुत हर्षित करने वाली। सकारात्मकता किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। RJS PBH was launched on 6/8/2023 along with RJS book Amrit Kal Ka Sakaratmak Bharat Part 1, giving an overview in retrospect of the positive work of RJS over the past 8 years. Dr. Sandeep Marwah, the internationally known media personality and media guru, wrote a foreword to the RJS book expressing his pleasure at the positive work being done by RJS, a work which has global significance in modern times. He gave his good wishes for the future of RJS. The book has the honor to apparently document the largest continuous public participation in the Amrit Mahotsav of Independence, a series which has achieved its aim of 150th episode on the 6th of August 2023 on the auspicious occasion of 77th Independence Day, has been continued in Amrit Kal to last till 2047. RJS and RJS PBH National Positive Media Network family feels glad and honored to decorate distinguished persons of society with the awards for dedication to efforts to build a positive India. The following awards are conferred on selected individuals. Positive India Personality Award, Positive Warrior Award, Lifetime Positive Services to India Award. आरजेएस ने भारतीय समाज में सकारात्मकता फैलाने के लिए आरजेएस के प्रमुख श्री उदय मन्ना के नेतृत्व में अपने अथक उत्साह को पहले की तरह जारी रखने और एक निष्ठ समर्पण के साथ प्रयास करने का संकल्प लिया है, ताकि हमारी प्राचीन सभ्यता सभी प्रकार की चुनौतियों से उभर सके। इसे जीवंत शब्दों में कहें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहें, और इसी शाश्वत पवित्र प्रार्थना की भावना में समग्र मानव जाति का कल्याण हो। हम नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मकता की तरफ बढ़ें। ओम अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आप सबने देखा, इस खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री ने कैसे पॉजिटिविटी को कैप्चर किया है, और यही जरूरत है। दिस इज द कॉल ऑफ द आवर टू बी पॉजिटिव। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मन्ना जी ने पिछले 10 साल से जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2047 का इन्होंने लक्ष्य रखा है, आजादी के अमृत काल की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए आरजेएस पीबीएच। और अभी कुछ ही वक्त में हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संदीप मारवा जी, जो कि चांसलर भी हैं एएएफटी के, वो पधारने वाले हैं, और भी कुछ गणमान्य व्यक्ति आने वाले हैं, जैसे कि ओंकारेश्वर पांडे जी, चेयरमैन हैं, एडिटर इन चीफ, ऑब्जर्वर ग्लोबल मीडिया ग्रुप। मनोज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। संजय राय जी भी उपस्थित हैं, नेशनल ब्यूरो चीफ आज के।
दीपचंद माथुर जी, जो कि आरजेएस ऑब्जर्वर हैं, हमेशा अपने आशीर्वाद और अपने मार्गदर्शन में आरजेएस को आगे बढ़ाया है। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, इनका योगदान बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव रहा है। अशोक कुमार मलिक जी हमारे बीच में हैं, पोएट, आरजेएस पीबीएच के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी हैं। और बाद में एक डिस्कशन का एक राउंड होगा जिसको मॉडरेट करेंगे स्वयं मन्ना जी करेंगे। और हमारे बीच में मौजूद हैं साधु प्रेम सागर जगदीश दास जी, जो कि कबीर वाणी प्रचारक हैं, श्री कबीर आश्रम जामनगर से आए हैं। खास करके इसी कार्यक्रम के लिए ये खास जामनगर से यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और अगले 24 फरवरी से 10 दिवसीय यात्रा गुजरात की होने वाली है आरजेएस की। जामनगर में ये मेजबानी करेंगे और बड़ौदा में मेजबानी करने वाले हैं आरजेएस पीबीएच ऑब्जर्वर प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन। ये दोनों बड़ौदा गुजरात में मेजबानी करेंगे इस यात्रा की, और जामनगर में साधु प्रेम सागर जी वो मेजबानी करेंगे। तो ये हमारे बीच में मौजूद हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये। और अभी अभी ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले इनसे बात हो रही थी मेरी, तो इन्होंने बताया कि ये क्या क्या अपने संस्थान की ओर से आगे पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो ये देखिए कि ये पॉजिटिव काम जो कर रहे हैं और आरजेएस पीबीएच जो पॉजिटिव काम कर रहा है, दोनों के बीच में समन्वयता कैसी है, कोऑर्डिनेशन कैसी है। और मन्ना जी का ये क्या कहें, मतलब एक थॉट प्रोसेस है और एक फॉरवर्ड लुकिंग थॉट है, जो कि ऐसे ऐसे लोगों को आपने जोड़ा है इस अपने संस्थान के साथ, अपने इस मुहिम के साथ। तो जब प्रेम सागर जी से भी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये पिछले कई वर्षों से, बल्कि कहें दशकों से इस मुहिम में ये लगे हुए हैं, और सकारात्मकता तो इनकी एक शैली ही है, इनका जो संस्थान है उसकी शैली है। और इनके जो गुरु जी हैं सदगुरु कबीर जी, उनकी 108 फीट की विशाल आकर्षक मूर्ति प्रतिमा ये स्थापित करने वाले हैं जामनगर में। तो निश्चित रूप से वह भव्य धाम कबीर पंथ के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। और मेरे ख्याल में बहुत कम ही वक्त है जब वो हमारे चीफ गेस्ट साहब हमारे बीच में आने वाले हैं, और शायद 2 एम्बेसडर भी हमारे बीच में आने वाले हैं जिनके साथ पैनल डिस्कशन होगा। मन्ना जी, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, कुछ अपने विचार आप प्रकट करें। वंदे मातरम। बेटा जी को देखा आपने, यहीं पे आए थे। 100 पत्रकारों को इकट्ठा किया गया था, और इससे पहले 30 मई को 2023 में इसी हॉल में डॉक्टर संदीप मारवाह जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम किया गया था, हिंदी पत्रकारिता दिवस। हर समय हमारे अंदर, कल ही डॉक्टर मदन कटारिया जी जो जगत गुरु हैं, लाफ्टर एम्बेसडर, वो आए थे संडे को और बता के गए कि हमारे अंदर 90% नेगेटिविटी होती है। इसी को दूर करने के लिए पत्रकारिता में पॉजिटिविटी लाई गई। लोगों को पॉजिटिव मीडिया जो है वो बड़ा आकर्षित करता है, तो मनोबल बढ़ता है। 9 साल पहले, मैं अगर नाम लेना चाहूं, हमारे बड़े भाई सुकुमार यादव जी बैठे हैं, जब मैंने इनसे कहा, एक प्रतीक रूप में बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, प्रतीक रूप में समझिए, जब मैंने इनसे कहा कि भाई बैठक करनी है, तो ये उस समय हरिभूमि के नजफगढ़ क्षेत्र के संस्करण के इंचार्ज थे। इन्होंने कहा हाँ हाँ। मैंने जहां भी लोगों को कहा, लोग तैयार बैठे मिले। तो 9 साल पहले मुझे जो डिफिकल्ट लग रहा था वो रास्ते आसानी से तय होते गए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपने देखा और पूरा देश जुड़ गया। आपने देखा कैसे बिट्टा जी ने जब कहा कि इसको आंदोलन बनाइए, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि ये जो काम कर रहे हैं पॉजिटिव मीडिया का, इसको आंदोलन बनाइए। तब जाके सकारात्मक भारत उदय आंदोलन बना। पहले ये अभियान, मिशन, और ये अब देखिए यहाँ पे इस दूरदर्शन के इशा खान
मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, आप लोगों के बीच से ही मोती चुन चुन के बता रहा हूं कि हुआ कैसे, ये ट्रेंड सेटिंग कैसे हुआ। ये सिलीगुड़ी में दूरदर्शन से स्थापित थे, वहां दूरदर्शन केंद्र सिलीगुड़ी में, वहां पे अरुण कुमार जी थे, वो बैठकें कर रहे थे लगातार, उनको सम्मानित भी किया गया एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। एमएस बिट्टा जी ने ही सम्मानित किया। एमएस बिट्टा जी यहाँ ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी 2 और कार्यक्रमों में आ चुके हैं। तो मैंने अरुण कुमार जी सह आयोजक थे, मैंने उनको कहा कि हमारे दूरदर्शन के भाई जो है ये 30 सालों से ऑल इंडिया रेडियो में ये और हम दोनों एक साथ प्रवेश किए थे, ये सब एक एक मोती यहाँ। अशोक कुमार मलिक जी अभी साल भर ही हो रहा है, पुस्तक मेले में मिले और मिले तो मिले ही रह गए, छोड़ा ही नहीं। बहुत कम्युनिकेशन होता है, ऑडियो में भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं। ब्रज किशोर जी बहुत कहते हैं आज क्या सेवा करनी है, मैंने कहा आप आ जाइए, बिटिया को लेकर आ जाइए बिटिया ये है इनकी अब देखिए मैंने नहीं कहा कि तुम वो करो ये करो, ये खुद ही, ये ब्रज किशोर समाज के वो शख्सियत हैं, ये लोग समाज में हैं, लेकिन मोतियों को चुनना आरजेएस ने शुरू किया। सुरजीत सिंह देतेवार जी, मैंने इनको कहा, मेरे 3-4 साल हो रहे हैं, ट्रेड फेयर में मिले थे और मिले तो मिले ही रह गए तब से लेकर। इन्होंने कई बार मुझे कहा कि आप आ जाइए और हम लोग हमारे यहाँ आइए, बैठक करते हैं, हमारे यहाँ कीजिए। तो मैं थोड़ा सा सोचा कि एक बार की मुलाकात है तो मैं थोड़ा सा वैसे मतलब मैंने सोचा चलो कभी जाएंगे। एक बार गया और जब गया तो गया ही रह गया। वहां कई कार्यक्रम हुए, बड़ा सहयोग रहता है सुरजीत सिंह देतेवार जी का। हम लोग ये ब्रह्म कुमारी पटियाला चिन्मय मिशन, ब्रह्म कुमारी संस्थान ने इनवाइट किया था आरजेएस मीडिया को, देतेवार जी साथ में थे। प्रफुल्ल पांडे जी भी हैं यहाँ पे, वो चिन्मय मिशन वाली यात्रा में साथ थे। अभी प्रखर नहीं है, प्रखर उससे पहले कुजीन को, उत्तराखंड के कुजीन को यात्रा लेके हम लोग 1 हफ्ते उत्तराखंड की गलियों में शहरों में घूमते रहे, बहुत सारे शहर 1 हफ्ते तक। कुजीन जो है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये सब शख्सियत हैं। फिर मदन कटारिया जी की प्रेरणा से हम लोग पहले से मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, लेकिन वो जब आए तो हम लोगों ने इसको अंगीकार कर लिया। तो दुर्गादास जी मिल गए और दुर्गादास जी मिले तो मिले ही रह गए आज तक। और सत्येंद्र जी, ये भी सब लाफ्टर के लोग हैं। तो ये लाफ्टर क्लब जो है, वही वाइस प्रेसिडेंट आई थी दिल्ली लाफ्टर क्लब की संडे को। तो जोड़ना और फिर आप जोड़ते हैं। आज का कार्यक्रम हुआ, कौन आया कौन गया, डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी ने जब हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि 75 कार्यक्रम 75वीं वर्षगांठ पर करेंगे, वो पूरा होने वाला था। उन्होंने कहा कि आरजेएस, ये इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा, गूगल पे लिखेंगे, वो आरजेएस एडवाइजर है, तेलंगाना में रहते हैं, दिल्ली से ही शिफ्ट कर गए। प्रफुल्ल भाई और बिजन मिश्रा जी, रंजन बेन जी और सत्येंद्र जी, सुमन त्यागी जी लगातार जुड़ते हैं। तो बातें बहुत हैं, लेकिन मेरे भारत की जो ताकत है, उस ताकत को हमने पहचाना। और न्यूज फोल्डर के गुलशन सैफी किरण जी हैं, लगातार ये पत्रकार जो है समर्थन करते हैं। प्रेस रिलीज आरजेएस करता है, ट्रेड फेयर में जाते हैं, वहां से ओएसडी के स्पेशल परमिशन से, आईटीपीओ के, हम लोग मीडिया सेंटर में विथ बैनर, वहां जो एग्जिबिटर होते हैं और जो आते हैं विजिटर, उनको बैठाकर और पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करते हैं, एक नया कंसेप्ट। और ये आरजेएस पीबीएच जो है, ये देखने में बड़ा छोटा है, लेकिन इसका काम वर्ल्ड वाइड है। और ये शुरू किसने किया? ऑनलाइन उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने। संजय द्विवेदी जी भारतीय पत्रकारिता में भारतीयता के प्रबल पक्षधर हैं, उसको आरजेएस ने अडॉप्ट किया, यानी उन्होंने ही लॉन्च किया था आरजेएस पीबीएच को। और फिर जितेंद्र सिंह शंटी जी पद्मश्री जो हैं, वो फिर आए थे, बिजन मिश्रा जी आए थे, प्रफुल्ल भाई आए थे। तो ये राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में पहली पुस्तक जिसका कि ग्रंथ देतेवार जी ने नाम दिया है, आज उस पर भी चर्चा होगी। और मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए। पिछले 31 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के गवाह हैं आपके राजीव गौतम जी, है ना, और मनोहर मनोज जी हो गए, आपके संजय राय जी हो गए। पार्क में बुलाए संजय राय जी को,
G20 का जो चल रहा था, तो हमें लगा कि यार हम लोग इतना बड़ा देश ने उपलब्धि हुई है तो G20 पर तो चर्चा होनी चाहिए। हमने संजय राय जी को फोन किया, ये आज जो अखबार है उसके हेड हैं, उसके पार्लियामेंट को देखते हैं, पार्लियामेंट को, और G20 के गवाह थे, तो हमने इनको चूज किया कि अब फोन करते ही आ गए, पार्क में आ गए। पत्रकारों को आप पार्क में बुलाएंगे, आएंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर आप पॉजिटिविटी को लेकर चलेंगे, आपके घर में भी, मैं घर की चर्चा कर रहा हूं, तो हमारे मैसेज आई हुई हैं, और मैसेज हर प्रोग्राम में रहती हैं, जो नेशनल प्रोग्राम होता है। बिटिया आई हुई है, आकांक्षा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पीजी स्टूडेंट कर चुकी है, और लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्सेज कर चुकी है। अपने परिवार को अगर पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो आप समझिए सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होने वाला है। ये अभियान जो है, ये पत्रकारिता कोई अलग चीज नहीं है। 31 महीने में बंद होने वाला उदंत मार्तंड आज भी जिंदा है, तो पॉजिटिविटी कल भी जिंदा रहेगी, और उसमें आप सभी का नाम लिखा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप जहां भी जाइए, फोटो खींचिए, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। पता नहीं कौन वो फोटो, आकाशवाणी के बहुत सारे लोग हम लोगों के चले जाते हैं, मैं उनको ढूंढता हूं, यार फोटो मिल जाता है कहीं, है ना। हमने भी फोटो बहुत सारे आकाशवाणी के लोगों को कह के कि भाई आओ, तुम्हारे साथ फोटो नहीं हुआ, एक फोटो कर दो। हम रहें या न रहें, लेकिन ये समाज, देश, दुनिया तो रहेगी। आपका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दर्ज तो होना चाहिए। इसलिए मैं ट्रू आरजेशियन का दर्जा देता हूं जिन लोगों ने अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ पार्ट 1, पार्ट 2 शोभायमान है उनके घर में, उनके आल औलाद जो है। कितने लोग तो प्रफुल्ल जी ने अपने माता पिता को उस किताब में छपवाया है। आप अपनी माता जी के बारे में कंटिन्यूअस दूसरी बार भी छपवाए हैं, अशोक कुमार मलिक जी। आज हम लोग उनके नाम पे, जो शिव कुमार जी हैं, उनके जो ससुर जी थे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने वो किया है। तो कार्यक्रम में ज्यादा विलंब न करते हुए गुलशन सैफी जी, किरण जी का सभी धन्यवाद है। आएंगे लोग, दिक्कत होती है लेकिन लोग आएंगे, आ भी रहे हैं। और मैं, चूंकि जो किताब रिलीज होने जा रही है, वो किताब क्या है, उसको ग्रंथ क्यों कहा गया, ये मेरे मन में भी जब दिलेवार जी बताने लगे तो मैंने कहा रुकिए, आप सबके सामने जो बताएंगे उसे वही मुझे स्वीकार है, मुझे उसमें कुछ संशोधन नहीं करना है। आपके मन में, आध्यात्मिक गुरु है आरजेएस फैमिली के, जब इनके मन में आया कि पुस्तक नहीं, ये ग्रंथ है, हमने एकदम से कहा कि ये यही समाज का, किसी ने सकारात्मक कहते रहे, लोग कहते रहे, उसको आरजेएस ने आंदोलन बना दिया। और आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी, मतलब ये लोग अगर नहीं होते तो शायद आप ये जो बैठे हुए हैं शायद यहां नहीं होते। ये दीपचंद माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर सिंस द इंसेप्शन ऑफ द आरजेएस राम जानकी संस्था, तब से लेकर जुड़े हुए हैं। अब 9 साल हो गए हैं, सबका गवाह हैं। मतलब ये देखिए, आप लोग आए हैं ना, आज 13 फरवरी 2024 के गवाह आप लोग हैं, और इस पर शोध होगा, क्योंकि जब डॉक्टर संदीप मारवाह जी जैसी शख्सियत का आशीर्वाद मिला, यहां हम लोग इनवाइटेड हैं मारवाह स्टूडियो में, आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया, आप लोग आइए, आप लोग फ्री है। मारवाह जी की सबसे बड़ी खासियत है, इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनको बस जिस पर विश्वास होता है उसको फ्री हैंड छोड़ देते हैं, और ये पूरा प्रोग्राम फ्री हैंड हो रहा है। री इन्वेंट जर्नलिज्म इन अमृतकाल, कितना बड़ा शब्द है अमृतकाल। अगर सरकार ने इसको अमृतकाल माना, आजादी का अमृत महोत्सव माना, तो हम भारत के लोग जो संविधान ने दिया है उसकी ताकत दिखाना ही आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का काम है, और वो ताकत आप सभी हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग किताब में दर्ज हों, क्योंकि 50 किताब निकलेगी, हर साल 2 किताब निकलेगी। आप, आपके परिवार जो दिवंगत लोग हैं, उन लोगों को हम किताब में छाप रहे हैं। ये पहली बार पत्रकारिता का नया डायमेंशन है कि अपने परिवार के साथ आप जिए, परिवार और समाज, देश और विश्व। इसीलिए राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, वसुधैव कुटुंबकम। बच्चों को समझाने के लिए कि विश्व तुम्हारा घर है, अपने घर को गंदा करते हो क्या? तो स्वच्छ मानसिकता के साथ आइए। जैसे ही स्वच्छ आपकी मानसिकता होगी,
आपको पूरा देश स्वीकार करेगा, क्योंकि वो भारत है कि जब शून्य पे भाषण देने जाता है शिकागो में तो पूरी दुनिया ताली बजाती है। आपके पास वो ताकत है, इसीलिए नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड की पहली यात्रा 10वें राज्य के रूप में गुजरात होने जा रही है। तो एक पूरी खुली किताब पॉजिटिव मीडिया के आपके सामने खड़ा है, कोई भी पन्ना पलट दीजिए आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनें, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वो सक्रियता दिखाएं और आपको शोधार्थी ढूंढें, क्योंकि अलग अलग राज्यों के शोधार्थी तैयार होंगे। ये भारत सरकार के यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त बनेगा सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण। और उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि आप पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट्स के पार्ट हैं, आप बताइए आपके क्या अनुभव हैं। उस वक्त आप बंगले न झांके, इसलिए सक्रियता की निहायत जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो मिली है उसका एक उद्देश्य बनाइए, उस उद्देश्य को लेकर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे पूरा देश आपके साथ होगा। तो ग्रंथ क्यों दिया सुरजीत सिंह दिदेवार जी ने? ग्रंथ नाम क्यों दिया? क्योंकि ये अभी तो दूसरी पुस्तक आई है, ग्रंथ के नाम से आई है, पहली पुस्तक के नाम से आई थी भाग 2। दिदेवार जी ने दूसरी पुस्तक का नाम अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ वॉल्यूम 2। दिदेवार जी को सादर आमंत्रित करना चाहेंगे, आरजेएस फैमिली के आध्यात्मिक गुरु हैं, प्लीज। स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आरजेशियन का स्वागत है और दीदेवार उनका आभारी है। सर्वप्रथम ही मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं मन्ना जी का बहुत आभारी हूं। अक्षर अक्षर जुड़कर बनता है शब्द, अक्षर अक्षर जुड़कर बनता है शब्द, शब्द शब्द जुड़कर बनती है लाइन, और लाइन जुड़ जुड़ कर बनता है दोहा, और दोहा जुड़ के बनती है चौपाई। और ये अलग अलग जो छोटी छोटी पुस्तिका है, जिसको हम हाथ में लेके गुटका भी कहते हैं, वो मिलके बनता है ग्रंथ। शब्द शब्द जुड़कर, अक्षर अक्षर जुड़कर, अंक अंक जुड़कर बनता है गणित। नर्सरी से लेकर 12th तक और पीएचडी तक चलते हैं, उसको कहते हैं नोटबुक, टेक्स्ट बुक। तो हमारे भारत के अंदर, ये विश्व के अंदर ग्रंथ है और टेक्स्ट बुक। हमने इसको ग्रंथ क्यों कहा गया, टेक्स्ट बुक क्यों नहीं कहा? जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, जो टेक्स्ट बुक है वो एजुकेशन जीविका के लिए है, और जो शब्द जुड़ जुड़ कर ग्रंथ बनता है वो ग्रंथ जीवन के लिए है। सो जीवन और जीविका के अंदर हमें अपने आप को ये समझना होगा कि जब हम ग्रंथ लेंगे तो हमारे जीवन को सुधारेगा, और जब हम टेक्स्ट बुक कहेंगे तो हमारे जीविका को लिए है। और ये जो आज हम पुस्तक को ग्रंथ का नाम दे रहे हैं, ये हमारे जीवन के लिए है। और ये विशेष क्यों है, इसको भी समझना होगा। हमारे भारतीय संस्कृति में या विश्व के अंदर जिस भी संप्रदाय, जिस भी धर्म, कहीं पर भी उनका ग्रंथ पूजनीय है, सर्वोत्तम है, मगर वो चाह कर भी उसमें अपना को अंकित नहीं कर सकते। जो अंकित है वो अंकित ही है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता।
मगर ये वो ग्रंथ है कि हम इसमें विराजमान हैं, विराजमान हमारी पहले की पीढ़ी भी है, हम वर्तमान पीढ़ी भी है, और हमारी भविष्य की पीढ़ी भी 2047 तक आती रहेगी। ये वो ग्रंथ है जो मेरा है, मेरा है, मेरा। ये ग्रंथ तेरा है, ये ग्रंथ मेरा है। मैं इस ग्रंथ में हूं, तू भी इस ग्रंथ में है। ये तेरा मैं और मेरा बन के हम ग्रंथ है, हम ग्रंथ है, हम ग्रंथ है। और इसीलिए हमें ये प्रेरित करता है। मेरा छोटा सा सहयोग भी इसमें अंकित है। मैं अपने विचार जब चाहूं इसमें अंकित करा सकता हूं, दर्शन करा सकता हूं। ये अधिकार जो है मुझे आरजेएस पीबीएच ने दिया है, और ये आरजेएस पीबीएच मन्ना जी का नहीं है, ये विश्व का है। इसका मालिक शुरुआत करने वाला तो अकेला होता है, पर मालिक सारा समूह होता है। ये आरजेशियन है, ये आरजेशियन है, ये आरजेशियन। सो मैं इस शब्द को कहना चाहता था, तो मन्ना जी ने कहा कि आप वही कहिएगा, क्योंकि जब ये पुस्तक को ग्रंथ कहा गया था, जब बच्चा जो स्कूल में नर्सरी में जाता है तो सभी बच्चों ने ABCD पढ़ा है, 0 1 9 तक पढ़ा है। मगर बच्चे की डिग्री क्या है? वो हर बच्चे की अपने जीवन की विशेषता होती है। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वो हर अपना अपना करता है। सो हम आरजेशियन तो हाँ एंटर कर गए नर्सरी की तरह, पर हमें इसमें अपनी डिग्री के जो हमारे सर्वोच्च है कब हो, ये हमारे सबका अधिकार है। हम सबको इसके साथ जुड़कर अपने आप को और बड़ा बनाना है, और आरजेशियन को भी बड़ा बनाना है। मैं कौन सी डिग्री लूं, ये भी निश्चित मुझे ही करना होगा कि मैं इंजीनियर हूं या डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं या पत्रकार हूं। याद रखिएगा, पॉजिटिव जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा विचार होता है। और पॉजिटिव विचार क्या है? कर्म कर, फल की चिंता ना कर। इसका अर्थ क्या है? जब बच्चा पहली क्लास के अंदर होता है, वही बच्चा 12th पास करता है जिसने फल की चिंता नहीं करी, सिर्फ पहली में रह के कर्म करता है, कर्म करता है, पास होने की नहीं उस पर ध्यान देता है, और 12th कब पास हो जाता है, ये कर्म करो, फल की चिंता न कर। इसका उद्देश्य ये है, ये पॉजिटिविटी है। हमें हमेशा वर्तमान में रहना है। वर्तमान में क्या है? जहां पर मेरा शरीर है वहां पर मेरे श्वास निश्चित रूप से होंगे, यह प्रकृति का नियम है। मगर क्या मैं वहां हूं विचार के रूप में या नहीं? अगर मैं विचार के रूप में हूं तो मैं प्रेजेंट हूं, नहीं तो मैं पास्ट में हूं या फ्यूचर में हूं। मेरा जीवन वैसा नहीं बन सकता, मेरा जीवन वैसा नहीं बन सकता। मेरे को प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में रहने का सबसे एक विचार है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मुझे स्वीकार है। कोई नेगेटिव होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता प्राकृतिक नियम के अंदर। मैं नेगेटिव पॉजिटिव किसे मानता हूं? जो मेरी समझ से वैसा काम हो जाए मैं उसे पॉजिटिव मान लेता हूं, जो मेरे विचार से नहीं हो मैं उसे नेगेटिव मान लेता हूं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैं अपने जीवन के अंदर जिस दिन मुझे प्राकृतिक नियम का ज्ञान हुआ, तो जो कुछ भी हुआ उसको स्वीकार करा। किसको स्वीकार करा? प्रकृति ने मुझे जो दिया मैंने उसे स्वीकार करा, और प्रकृति बाउंड हो जाती है फिर मुझे वो देने के लिए जो मुझे स्वीकार होता है। इसलिए नेगेटिव कभी भी आए जिंदगी के अंदर आपके विचार से, वो नेगेटिव नहीं है, सिर्फ आपको स्वीकार करना है, आपको वो निश्चित रूप से मिलेगा। हम इस जगत में आ गए तो कौन सा नेगेटिविटी? हमने अपने माँ बाप को नेगेटिव पॉजिटिव कहा है, हमने अपने सिबलिंग जो बहन भाई हैं नेगेटिव पॉजिटिव कहा है, वो भी तो हमें मिल गए हैं। तो फिर मेरी साथ वाली सीट पे जो बैठा है उसको स्वीकार क्यों नहीं करता? जो मेरे साथ चल रहा है मैं उसे स्वीकार क्यों नहीं करता?
वो भी तो मुझे प्रकृति के द्वारा मिला। सो मानव के अंदर एक दुर्भाग्य है कि मानव को सिर्फ मानव से ही कष्ट हो रहा है। मानव अगर मानव से कष्ट छोड़ दे, उसे स्वीकार कर ले, तो ये सृष्टि पॉजिटिव पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिविटी क्या है? पोल्यूशन है, नेगेटिविटी है, ये नहीं, कुछ नहीं है। पोल्यूशन क्या आपके लिए या मेरे लिए है? पोल्यूशन जो इस एटमॉस्फेयर है सबके लिए है। पर मेरे विचार कितने साफ हैं, ये पोल्यूशन कुछ नहीं कर सकता। एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक रात को ऊपर छत के ऊपर पुराने समय में परिवार पूरा सोया होता था। परिवार के 5 जो जन थे वो सोए हुए थे। सुबह उठे तो एक को ताप था, तो डॉक्टर ने बताया, वैद्य ने बताया कि इसको मच्छर ने काटा है, इसलिए इसे मलेरिया हो गया है, हैजा हो गया है, कोई भी एक नाम दे सकते हैं। तो क्या मच्छर को उससे दुश्मनी थी या मच्छर को उसका ज्ञान था कि मुझे इसने काटा? मच्छर तो सभी प्राणियों के पास गया होगा और काटा होगा। फिर एक को क्यों ताप हुआ? जो शारीरिक रूप से कमजोर था होता। तो याद रखिए, अगर मैं शरीर रूप से कमजोर हूं तो एक मच्छर भी मेरे जीवन के अंदर रुकावट बन सकता है। अगर मैं विचारों से संतुष्ट हूं तो मेरे जीवन के अंदर भी आगे आएगा। सो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए ये कह सकता हूं कि आज हम अपने आप को एक ऐसा प्रेजेंट दें, यहाँ करके प्रेजेंट में रहने का प्रेजेंट दें, और हम अगर प्रेजेंट में हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हमारे विशेष अतिथि आगे हैं, मैं उनका भी सत्कार करता हूं और आगमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आज एम्बेसडर साहब का, और संदीप मारवा जी का भी इंतजार हो रहा है, और दीप प्रज्वलन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और यहाँ से जो गुजरात से भाई पधारे हैं, कबीरपंथी प्रेम सागर जी, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और दीप प्रज्वलन होगा तो यहाँ पर कबीर के भजन से इस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और बस इंतजार हो रहा है, आज की अध्यक्षता करेंगे। ये कोई है इसके लिए? ये बिटिया ये एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आफ्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा जी, जिनके सानिध्य में, उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, रीइन्वेंट जर्नलिज्म इन अमृतकाल। तो सबसे पहले जो है मैं आमंत्रित करूंगा आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी का, और आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता जो हैं उनको आमंत्रित करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए।
गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि तदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि तदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गान चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय चला गया विदेश में चला गया नीचे बैठना कि वाइट के सारे लोग हैं मैं एक्सप्रेशन क्लियर मारूंगा ठीक है प्रिंस सर तू कवर करो बैटरी पे प्रिंस सर को सॉल्व करियो हम लोगों का सभी कार्यक्रम जो है किसी न किसी श्लोक और सुविचार से होता है। भारत की संस्कृति है ये। तो गुजरात से जहां गुजरात 10 दिनों की यात्रा होने जा रही है वहां हम लोगों को रिसीव करेंगे जामनगर श्री कबीर मंदिर से आए हुए प्रेम सागर जी, साधु प्रेम सागर जी। उसके बाद स्वागत वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सदगुरु कबीर के छोटे ही शब्द जो है, एक ही शब्द है कि सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। तो सदगुरु का वाणी है जिससे मैं शुभ आरंभ करता हूं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कबीर जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कर बहिया बल अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप हूँ खाए औरों को दीजिए। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। श्वास श्वास में राम जप, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने यह श्वास को
आवन होय न होय। जन्म तोरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहू न राम कहियो। 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण रे, मकर 25 माया कारण देश विदेश गया। कबहू न राम कहियो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, चोला छूट गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। It gives us immense pleasure to welcome on the dais Shri Sandeep Marwah ji, Chancellor AFT, University of Media and Arts, His Excellency Elchin Hosseini, Ambassador of Azerbaijan, His Excellency Mustafa Jawara, High Commissioner of Gambia to India. We'd like to request Shri Sandeep Marwah ji to welcome We are also honored to have Mr. Richard Morris from Australia amongst us on the dais, and Mrs. Morris as well on the dais from Australia. Mr. Manna ji, welcome कीजिए. Okay, we have the First Lady from Azerbaijan as well here amongst us. Please welcome her. देखिए, ये 2 सेशन में हो रहा है और आप ये समझिए कि जो कुछ भी डाइस पे हो रहा है उसका बैकबोन आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग हैं तब ये डाइस बनता है। इसलिए हम सभी साथ हैं, हम सब एक हैं और हम सब केवल भारतीय नहीं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। और इसीलिए नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड संदीप मारवाह जी के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ऐसी शख्सियत भारत में रहना चाहिए और वहां पॉजिटिव मीडिया की उपस्थिति आज ऐतिहासिक बन रही है। तीसरी बार गेट सेट गो 1 2 3 आज तीसरा प्रोग्राम है जो मारवाह स्टूडियो में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आरजेएस पीबीएच का हो रहा है। एक ग्रैंड वेलकम जो है आरजेएस जो 25 राज्यों की है उनकी तरफ से संदीप मारवाह जी और एम्बेसडर हैं। आप सभी देखिए भारत में किस तरह से पूरे वसुधैव कुटुंबकम, यू आर वेलकम हियर, वर्ल्ड इज अ फैमिली। सब आप लोगों की तरफ से ऐसी शख्सियत पूरे भारत सरकार में समाज में रहने चाहिए और ये आपका स्वागत है।
We'd like to invite Shri Marwah ji on stage to have a few words. Good afternoon, everyone. What a pleasure to be here this afternoon with all of you on this beautiful, well-designed program by RJS Media, who have become today the part and parcel of 12th Global Festival of Journalism, Noida 2024. My heartiest welcome to all of you at Marwah Studios. Respected all the dignities on the dais, my friends right here in this auditorium, let me start with two very important lines. कि काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल. Now what I'm trying to tell you in these two lines, and before I give you the meaning of these two lines, let me admit I belong to films, television, media, art and culture fraternity, and this is one business where we have never ever bothered to divide the society on the basis of caste, creed, religion, region, status, color, rich, poor. Never. We have never ever divided the society. We have only one religion, and that is called media and entertainment, growth and entertainment. This is what we believe in. This is our dharma. This is our religion. But still, I have gone out of way to divide the society on the basis of these three major principles which I have written down. Kaam shuru karte nahi, bhai se niche log. Who are the downtrodden people of the society? People who have 100 excuses for one single job. If you ask them to do one job, they have 100 excuses to present to you. And I have categorized all these kind of people into the C class, the downtrodden people of the society. Madhyam tajte beech mein dekh visham sanyog. Who are the people who belong to middle class? People with little push and pull. You try to motivate them, encourage them, but the minute they see a bit of the hindrance, they try to run away from the battlefield. Mar gaye, lut gaye, barbad ho gaye, chhod de, rehn de, ho jayega, kar lenge, mere se ho hi nahi sakta. All these people are B class. Par uttam ve log jo har durgam pat jhel. Who are the people who belong to A class? People who have zest, enthusiasm, excitement. They are passionate. People who want to show something to the world. People who have energy to work for the nation, work for the society, work for the people of this industry. People who want to achieve something in life. People who have goals in life. People who want to carve out a career for themselves and for the people. I have categorized all these kind of people into the first class because they are the people who ultimately turns out to be the achiever. Yes, what a pleasure, my dear friends. Not only that this auditorium today is full of achievers, because we're going to highlight so many awards today to some of the very prominent journalists of the nation. Not only that I'm sharing this dice with these so many prominent and achievers of this, or worldly achievers. Let's give a big hand to all these people in a big way. सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा का. Whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth. The fact is, there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. On this very auspicious day, let's pray. Hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds. And through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe. I'm sure you will also believe in the same.
I'm so thankful to Mr. Manna for creating this organization called RJS Media. And I've been seeing this man passionately working for media groups, for media persons, for journalists, and anyone and everyone. And the minute I talk to him, I can see that passion, that love, that excitement which starts flowing from his body language, from his words. He wants to achieve anything and everything in shortest period of time, and not for himself, for the people of this industry. I'm very happy just to tell you that we all are today part of International Journalism Center, which is one of the very important body of this world. Around 35,000 media professionals, they are part and parcel of this body from 156 countries of the world. And I feel very happy and obliged to chair this powerful organization. I'm so thankful to my government for giving me large number of designations so that I can work faster than what a government can do sometime itself. Yes, idea of conducting Global Festival of Journalism is to bring in love, peace, and unity through journalism. IJC's sole purpose is to think about constructive journalism. And that's what we are doing from last 12 years. 12 years back, we created this day, 12th February, as the International Day of Journalism. And I'm very happy that in a span of all these 12 years, slowly and gradually, this day is now being celebrated, not only in India, but in many other countries of the world. And like 21st June, what we started 32 years back as International Yoga Day, rest is the history. You know that the whole world is celebrating International Yoga Day from last 7 years. And I'm sure in a span of few more years, the whole world will jump to 12th February as the International Day of Journalism. Now, these 3 days of a Global Festival of Journalism, which speaks about 12th as the International Day of Journalism, 13th as a World Radio Day. Today is a World Radio Day, and let me congratulate each and everyone on the World Radio Day. And 14th is Valentine's Day, and that means we're still talking about love, peace, and unity. With all these words, I extend my heartiest thanks to Mr. Manna, RJS Media, for taking me the part of this program also. All the best, and very soon we will be distributing awards to the respective journalists. We're also expecting a delegation from Gambia in a few minutes, and they're going to be part of this program. And we have to honor even those very important artists who have flown all the way from Gambia to be part of this event. They'll be here in a few minutes. And I'm so thankful to my special thanks to the High Commissioner of Gambia, Ambassador of Azerbaijan, and my dear friend from Australia. Thank you very much. That was indeed a very powerful statement made by Shri Marwah. He just does not speak his word, but he also walks the talk, whatever he says. So now next, we'd like to invite His Excellency Elchin Hosseini, Ambassador of Azerbaijan, on the podium to say a few words, please. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Before I start, first of all, it's always difficult to speak after Mr. Marwah. Second, many years ago, many centuries ago, when as a young diplomat, I was going through training, and part of our upbringing as a diplomat was courses to how to deal with journalists. And one lesson that I remember from my mentor at that time, he said that journalist is always right in the eye of the audience. If he interviews you, if he interrupts you, he's right. If he's asking harsh questions, he's right. If he's got hard on you, again, he's right. Be patient. So that's the lesson that I always carried with myself in my future career. And whenever I dealt with journalists, I always tried to be respectful for the job they're doing. Even if I didn't think they were right, I think they are right by the nature of their profession, because they're in search of truth. They're in search of information that has to be brought to the audience. And as Mr. Marwah rightfully said,
they're serving as a bridge within our society. So without information that has to be delivered to the people, our life won't be seen from the truthful side of it. So very pleased to be here, very happy to be here, honored, and see such enthusiastic, zealous persons here. Again, as part of this festival, my country is attending with a documentary about Nightingale, legend of Hare Bilbil and Nightingale. This pin that you see on my chest is Nightingale. It's a national symbol of Azerbaijan, representing the cultural capital of my country. And hopefully you will enjoy the documentary that will be demonstrated today. Thank you very much. Thank you so very much, sir. Now I would like to invite His Excellency Mustafa Jawara, High Commissioner of Gambia, to say a few words, please. Assalamu alaikum. Namaskar. I am in a state of exuberance. Anytime I am in front of the Honorable Excellency Sandeep Marwah, I feel happy and fulfilled. He's a great man. He's a friend of mine, a friend of the Gambia. He's an Indian, but I call him a global property. We all own him. The Gambia loves him. It is 3 years now I've been coming here, working with him. Anytime I step my foot here, the hospitality is always the same. It's always at the top of what I expect. He's a good man, he's a kind man. And a few days ago, when I approached him, I called him, I informed him that we have a group of different backgrounds, the national troop of the Gambia, comprising of all aspects of our Gambian culture. They are here to attend the Suraj Kund Mila. 19 of them. They're supposed to be here with us. But one of them got sick, and we arranged for them to go to a hospital for medical checkup, all of them. We are lucky to be partnering with some hospitals. They assisted us for free treatment. So they got stuck there. They should be coming. We are expecting them, but it may not happen because they are stuck at the hospital. I apologize profusely for that. But sometime before they leave, we would make arrangements for them to visit this honorable institute. We love our dear Sandeep Marwah. Culture, especially diplomatic, in the art of diplomacy, culture is very important. One of our objectives is to explore the Indian culture. A big country, the most populated country on the face of the globe. You have so many cultures in this country. It's a diverse culture. Interacting with the Gambian culture and the Azerbaijan culture, I think that's a good thing. As for Gambia, we will explore this partnership. We have already signed MOU with the Honorable Sandeep Marwah last year.
And we want to explore more. We want to have more cultural contacts. India is a household name in the Gambia, especially Indian movie. Anybody who grew up in the Gambia in the 1970s, 1980s, 1990s, you must be familiar with Indian music, Indian movie, Indian cinema. My wife is not here with us, but she could speak a little bit Hindi because of just watching the Indian movies. So it is also, I would say, part of the Gambian culture. The Indian culture is part of Gambian culture through the movies. And we want to explore that. On that note, I thank you, all of you, for your patience. Our team will be with you at some point before they go back to Gambia. Thank you. Yeah. Thank you so very much, Your Excellency. Now I invite Mr. Richard Morris from Australia to have a few words. Thank you very much. It's a very great honor to be here at this extraordinary facility, Marwah Studios, that does amazing things. And Sandeep, I have been tracking for some close to 50 years now, when we first became close with your brother Deepak and our families became friends, to see the amazing achievements that you have brought to the world of television and film and media. And as you said, this is about uniting and bringing peoples of the globe together. And I think it's a fascinating body of work that you do. And I thank you for the amazing person that you are yourself. Without your passion and your commitment and your charisma and your drive, no organization would ever rise to its zenith. And I think your personal nature and goodness has taken this organization to where it is today, and it's absolutely fascinating and wonderful. I'm greatly humbled to be in your presence, and thank you. I'm here largely to talk about a journalist of the past. My great-great-grandfather, Professor Ramchandra of Delhi, he lived during the time of the first War of Independence, as it's called, or the Great Mutiny of 1857. And Master Ramchandra had a harder time at journalism than I think we do now. There were no televisions and no radios and those sorts of things. The only way a message could get across to the people, whether it was a message of patriotism or whether it was a message to stand up and revolt and fight, all of that had to be done either in the spoken word or the written form. And Master Ramchandra, apart from being an extraordinary mathematician of his day, was also an Urdu journalist and writer who wrote prolifically on various subjects that were of significance and importance politically, economically, and socially. And he touched the hearts and the minds of the people of Delhi and Hindustan more broadly in those days. And as I said, it must have been a harder job to be in this game when all you had was a pen and a candlelight by which to sort of do it. He was also an extraordinary mathematician who achieved international fame due to the quality of his work as a mathematician and his capacity for imagination and speculation. And there was an a British mathematician at the time, Professor Augustus de Morgan. He was the professor of mathematics in London University, regarded as the greatest mathematician of his time in Europe. And he took upon the story and the work of Master Ramchandra, and he realized what Ramchandra was more than just a person who applied mathematics to doing things. It was not about 2 + 2 = 4, but he had a mind for speculation and imagination that took 2 + 2 and made it 5 or made it 6. And it is for that De Morgan took
a mathematical treatise that he wrote, and he brought it to international fame all across Europe, because De Morgan, unlike the British rulers in this country at the time, De Morgan had a deep fondness and affection and empathy for India because he knew of its suffering. He himself had been born in Mathura in South India, but he had never lived here. He'd grown up, till the age of 1 or 2, and then he went back to the UK. But he had a fondness for India, and he knew of the destruction that the East India Company and the British were doing here. So he wanted to elevate Ramchandra because he believed that the whole idea of innovation and imagination and imaginative thinking in mathematics was about creating new nations and the nation state. So that's just a small story about an extraordinary man who was an extraordinary journalist. He, if we want to use divisions of caste and class and religion, well, he was born a Hindu. He was a caste by community. They tended to work in governments and in high office because of the skills that they had. And he worked for the British, but he used his skills to embolden and motivate his people, as he thought, to seek their own freedom through education. He centrally was focused on the need for broadening the base of education, and he did it through translation of European sciences and European mathematics and the things that made Europe great and powerful. He realized that gunpowder and the printing press, these are the things that had made Europe great, and he wanted that for his India as he saw it. So I'll just close by saying that he was a man who personally was then attracted to the religion of Christianity. He went through phases of philosophical change himself. He rejected his own faith. He rejected Islam. He rejected Judaism as a young man and as a young philosopher. And then finally, later on in life, he turned for various reasons and became a Christian. And that was just one part of his life, but it didn't affect who he was or the work he did. It mattered not what one's faith is or what one's background is, but it's an extraordinary story of an extraordinary Indian who was a remarkable journalist of his time. So I thank you for the opportunity, Sandeep, for Kamala and I to be here and visit you, and it's deeply humbling, and I'm just in awe at you and the organization that you've created, and just think of the future of the people out here, these young people who should be replacing all of us here quickly, because the world is all about them, and it's people like you that create the opportunity for them. Thank you very much. Thank you, sir. Now I'd like to invite on stage Shri Ashok Kumar Malik ji, the official spokesperson of RJS PBH. Thank you very much. Actually, the atmosphere is very vibrant, because after the world media guru has spoken his vibrant words, I think our hearts or our totality of our thinking and emotions are resonating. And that itself speaks volumes, because whatever has been done over the years can be reflected and can be present in moments also. And when the media guru was speaking, so vibes were going. I am sure that they are still resonating with those vibes. Now, I would like to definitely mention that this is the third time we are privileged also. And as the media guru has said, that he also very much, Gun Grahakta ki baat ki unhone, he is very much appreciated of the founder of RJS PBH. And this is the third time, you see, we are here. Now I will very briefly touch upon the
very vital issue facing all humanity. These are not the days when we can think only provincially. It is simply anachronistic. It is simply anachronistic. We have to start at any point, no doubt. We can start from a province. We can start from the nation. In fact, we started from ourselves. Manna ji started on the principle of Ekla Chalo, Ekla Chalo. And people came along and strengthened the movement. And now, you know, here the subject is reinvent journalism in Amritkal. Now, you know, present generation all over the globe is roughly aware of the maladies prevailing in our global society. These are well known, you know. Now the point is how to overcome the very complex situation, like a very enormous mountain before us. And yet RJS PBH has been reinventing itself, you know, all the time. Has got many dimensions. We are going to Gujarat, you know. We don't want to always remain in the virtual world. We have to, you see, now the actual touch here with the people, we are seeing the faces, you know, that kind of thing, you know. We undertake journeys. And I think it would be pertinent to remember the experiment of Bharat Ratna M.S. Swaminathan. Ever innovative, he thought of the knowledge village. So we don't have to remain in the virtual space only. We are undertaking journeys, and this will be the 10th journey to Gujarat, a vibrant state, you know, with great history. You know, another thing we wanted to, we are not under illusion that the enormous maladies prevalent in societies of the world will be soluble in our generation only. Let us at least leave it in some better position to be tackled by the coming generations, you know. So that is why we are emphasizing that we have to first look at the parameters of the patient societies. The parameters of the patient societies globally. And we have consciously chosen this path to follow. Others are doing in their own fashion, you know. But our is the message of positivity. And we believe that that is the only method which will not create problems. Which will not create problems, because we should never forget lessons from history. We can't go direct to the, you know, if you take the patient to the operation theater without controlling or normalizing the parameters, what would happen? A very chance of death to the patient, you know. So that is the reason RJS Positive Broadcasting House, RJS Positive Media, doing work, has been doing work for several years, you know, is very vibrant, is reinventing itself. Journalism has to reinvent itself in the light of the things that I have talked about. Thank you very much. Thank you very much. We'd like to invite now Mr. Sanjay Rai, senior journalist, on stage to say a few words, please. मंच पर आसीन मरवाह जी, मन्ना जी, आमंत्रित हमारे राजदूत अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित सज्जनों, ये जो आज का कार्यक्रम है, यहाँ पर हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और वो है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक। मैं आपको
बताऊं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा आने का एक मुख्य कारण यही रहा कि समाज में मैं कुछ अपने तरफ से सकारात्मक दे सकूं। कुछ जो कुछ भी हो रहा है, जो मेरे विचार हैं, कुछ अच्छा निकाल करके, विचार तो पहले से ही मौजूद रहते हैं, हमें सिर्फ उन्हें ग्रहण करना होता है। और ऐसा नहीं है कि जो हम आज चर्चा कर रहे हैं वो पहले नहीं मौजूद था। हम सब लोगों के मस्तिष्क में हमेशा दो तरह के विचार चलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और ये डिसाइड करना पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है, ये हमसे आप खुद से अच्छा कोई नहीं बता सकता हमें। और एक सेकंड में आपको हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा में मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा है कि जब भी मेरे मन में इस तरह की कोई दुविधा की भावना पैदा होती थी तो मैं एक पल के लिए सोचता था और वो पता चल जाता था कि सही क्या है। फिर मैं परवाह नहीं करता था कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है या मेरे पीछे 100 लोग हैं या कोई नहीं है, मैं अकेले चल देता था। तो इस तरह देखिए, इन निर्णय करना आपके हाथ में है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। और समाज में नकारात्मक जो चीज है, जो कुछ भी है, जहां पर भी है, उसको आप अपनी प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि अपने सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक क्रियाओं से बदल सकते हैं। मन्ना जी ने जो पहल शुरू की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं इनसे जुड़ा हूं। और आगे भी जहां तक आप सभी लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस धरती पर हम यात्रा पर हैं और यह यात्रा हम सब की कभी न कभी समाप्त होगी। हमको अपनी भावी पीढ़ी को सौंप करके जाना है। मैं देखता हूँ गांव से लेकर के शहर तक बहुत सी चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं जिसमें हमको सकारात्मक सोच की जरूरत है। हमारे पूर्वज, हमारे परदादा, हमारे गांव में मैंने देखा है, हमारे परदादा के लगाए हुए आम के पेड़ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आज की पीढ़ी पेड़ नहीं लगाती। अगर हम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ भी, आम का पेड़ या कोई भी पेड़ लगाना शुरू कर दें तो हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हम अगर 10 पेड़ लगाते हैं तो एक पुत्र के जितना हमको फल मिलता है। बहुत सी चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें हम फैला सकते हैं और समाज को सकारात्मक दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप सभी लोग जो कुछ भी यहाँ पर आए, बहुत अच्छा, और आगे भी आप लोग ये काम करते रहिए, हमारा सहयोग पूरा रहेगा। धन्यवाद सर। Mr. Manohar Manoj, senior journalist, is our next speaker. Welcome you on stage, sir. Thank you very much for inviting me in this very remarkable gathering of this international level function organized by primarily Marwah Studio. It's a stalwart Dr. Sandeep Marwah ji, all the ambassadors, His Excellency, sitting on the dais from Gambia, from Azerbaijan, and from Australia. The coordinator of this RJS positive, Mr. Uday Manna ji. It is really this function. I have attended so many offline and online function of RJS positive, but I think this is the fantastic commemoration of this media event. And I can well understand this has happened because of the great support by the renowned media guru Sandeep Marwah ji and his Marwah Studio. First of all, I would like to appreciate the initiative of Marwah Studio to organize this international journalism event. And first time I came to know this is being organized on 12 to 14 February every year. I always think that media must have some global, must have some worldwide coordinated some type of affair, because I always regarded journalism as an informal kind of thing. This is very much true. This is called as the fourth state of democracy, but in fact this is not the fourth state. It's only a tradition. It's only a slogan which doesn't have any constitutional platform or legal platform.
the function was started with the very motivational speech of Mr. Sandeep Marwah. Actually, I know him because he's my FB friend also. And what he said, I totally agree with him. And but he has beholded this whole media, entertainment and journalism field as an industry. And I think this is no doubt the media is also an industry. But many people say that this is a social service. Many people say this is a mission. Many people take the note of the role of media during the independence struggle. But at present, I foresee media as part of the democracy, as the fourth pillar of democracy, though it is not in the real term. But I always behold it as a fourth organ of democracy, as a check and balance organ of democracy. Because I think no roof can be erected without the help of the fourth pillar. Three pillar cannot erect a roof. So fourth pillar is always required. And I have just running a campaign that is for granting constitutional status to mass media. And I have just decided, and I have just taken a resolve that I will take a 1 lakh signature of media person throughout the country. And that letter and that memorandum will be given to President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of Supreme Court, and Speaker of Lok Sabha, and also of Rajya Sabha, so that we can just create a awakening, so that we can create some kind of authority which is always required in a democracy. Because I think the media is itself a very big topic of debate, which media just caters so many debates, so many issues, so many revolution, so many agitation, so many movements happening throughout the world. But I think itself media is a matter of big debate. And I think there must be a full, comprehensive and holistic presentation on various aspects of various parts of mass media. And I appeal to Mr. Sandeep Marwah, just take initiative on this point also. You are running a big industry, you are coordinating of Government of India, you have just given a global perspective of media industry, that's all right. But I think when we go into the deep detail of the status of media, which is present in terms of several technical outlets, you can say the electronic media, audio-visual journalism, print journalism, periodicity journalism, daily, and all sorts of web media, digital media, social media, new media. So many ventures of mass media are there. Media is the sole pillar of democracy, which has to always appear before the exam of technology. Because at every 10 years, 5 years, 7 years, media technology gets changed, information technology gets changed, and you have to be habituated, and we have to just cope up with the media habits of the society also, because every day the trend and tradition is getting changed. So we have to cope up with that. But I am talking about all those persons who are spreading all over the country, and they are full-time devoted towards this journalism profession. I know many people does freelance, they contribute article to the media houses, and somebody work as a stringer, somebody work as just a media analyst. So, but I am talking about all those persons who are fully devoted to media. There must have some ethos. We must also talk about the professional problem of the mass media and media persons also. We must also note about the problem of the media publishers also, because small entrepreneurs are in a large number, in an outnumbered manner. So there are so many issues. I think if we talk about media, we must also talk about the advertisement policy. We must also talk about the spectrum policy. We must also talk about the uplinking facility. We must also talk about the newsprint. And we must also talk about the right to information. So many things are there. And there are so many institutions on behalf of government which are catering and coordinating with media, like there's a PIB, like DAVP, like Press Council of India, like so many organizations are there. We have some broadcasting associations are also there. We have Indian Newspaper Society also. So many stakeholders are there. And all problem must have to be congregated, and just we have a national debate over the all aspects of media. And I think
this is the one cause, the granting constitutional status to media. It will solve all the problems pertaining to media. And I think there is a role for Sandeep Marwah ji to go into this aspect and just create some comprehensive, broad aspect of the all issues of mass media. Thank you very much. Thank you so very much, sir. Now there is going to be a book release of the RJS PBH house. And to do the honors, I'd like to invite on stage Ashok Malik ji, Deep Mathur ji, and Surjit Singh Dedewar ji. And advertisers as well. Please come on stage. मैं अभी एक और ये आपकी किताब है, ये दूसरा ग्रंथ है, वॉल्यूम 2. And a 10-day yatra is also being organized from the 24th of this month. 10-day Gujarat yatra. And we'd like to invite Sadhu Ram Prem Sagar ji from Jamnagar. Surjit Singh Dedewar ji is already here. Praful Pandey ji, Srimati Brinda Manna, Akansha Manna on stage. All the best for this yatra. Please, roll Karavi. Somebody should roll it. Thank you, sir. Announce करें हाँ Morning, sir. Very good evening, everyone. For this, I request Honorable President, sir, to kindly present the festival memento to His Excellency Elshir Hussain Ali, Ambassador of Azerbaijan. Kindly present festival memento to Mustafa Jawara, High Commissioner of Gambia, His Excellency Mustafa Jawara. I request Honorable Chancellor sir to present Indo-Australian Film and Cultural Forum is honored in presenting membership to Richard Morris. And also the festival memento. Indo-Australian Film and Cultural Forum is honored in presenting membership to Carmel Morris along with the festival memento. I request Honorable Chancellor sir to present festival memento to Mr. Sanjay Rai, Senior Journalist. Festival memento kindly presented to Mr. Manohar Manoj, Senior Journalist.
Mr. Manohar Manoj. Kindly present the festival memento to Mr. Manohar Manoj, senior journalist. Kindly present festival memento to Mr. Omkareshwar Pandey. Kindly present the festival memento to Mr. Uday Kumar. Deepankar Mathurji, Deepchand Mathurji, festival memento. Sir, please. Now I request Nishad sir to kindly take over the mic and announce the other mementos. Thank you so much. We would like to call on stage Dheeraj Kumar, correspondent Doordarshan News. Not here. Shri Gyan Prakash Ji, principal correspondent Health, Rashtriya Sahara. Not here. Durga Das Azad Ji, analyst RJS PBH Positive Media. Ali Sajid Hussain, panelist, RJS PBH Positive Media. अंकल कैमरा के सामने Akansha Manna, panelist RJS PBH. Praful Pandey, reporter Swastik Sahara newspaper. Kirandeep Kaur, special correspondent Sandhya Veer Arjun, Delhi newspaper. Tanushri, CEO Samachar Nirdesh newspaper. Tanushri, CEO Samachar Nirdesh. Omkar Bharadwaj, editor Darpan Times. Ashok Kaushik, editor Dainik Hind Atma. Pawan Arora, correspondent Indian Horizon. Gulshan Saifi, editor News Folder Digital. Gulshan Saifi. Pawan Arora. Kiran Sharma, editor-in-chief News Folder. Kiran Sharma. Brahmanand Jha, founder Rashtra Samachar. Geeta Sharma, reporter Sangyan Drishti. गीता शर्मा चलिए निश्चित कुमार जी आज ऑल इंडिया ये है आकाशवाणी का आप जानते हैं कि इंग्लिश न्यूज रीडर है निश्चित कुमार जी। दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय निश्चित कुमार। निश्चित कुमार जी का सम्मान ये दिया जा रहा है, एंकरिंग भी इस कार्यक्रम पर करते हैं निश्चित कुमार जी।
नेक्स्ट ये और गेस्ट जो है इनका किसका है नाम यहाँ दे दीजिए, जो है नाम बोल देंगे, नाम ये बोल दीजिए। कहाँ आप तो कोई है ही नहीं। हो गया सबका, हो गया सबका हो गया। कोई रह गए हैं तो बता दीजिए। यस, वी आर रैपिंग अप। यस, उदय मन्ना जी आमंत्रित करना चाहेंगे आपको फॉर वोट ऑफ थैंक्स नाउ। री इन्वेंट जर्नलिज्म इन अमृत काल, ये शब्द ही अपने आप में एक विकासात्मक शब्द है और पॉजिटिव शब्द है, और इसको लेकर अगर विकसित भारत की कल्पना भारत सरकार कर रही है तो बिना पॉजिटिविटी के नहीं हो सकता। पूरे वर्ल्ड को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाकर विकसित भारत का सपना शुरू होगा। और इस सपने को अंजाम देने के लिए राम जानकी संस्थान, आज पूरे वर्ल्ड में राम जय श्री राम हो रहा है। 9 साल से राम जानकी संस्थान इसमें खप रहा है कि हमारा भारत कैसे सकारात्मक हो, और सकारात्मक व्यक्तित्वों को ढूंढता है। उसमें से आप सब यहां पर आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पैन करके दिखा दें। यही इतिहास बनेगा जो लोग अपना समय देते हैं सकारात्मकता के लिए। सकारात्मक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप डॉक्टर संदीप मारवाह जी को देख लीजिए। सकारात्मक व्यक्तित्व कैसा होता है, इनकी पर्सनालिटी कैसी है। जो आदमी फिल्म सिटी नोएडा की स्थापना कर सकता है, सोचिए जिस समय शुरुआत कर रहा होगा। आज आप यहां बैठे हैं इसी वजह से। ऐसे महान शख्सियत को हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनका सहयोग ले रहे हैं। इसी तरह से मंत्री में भी जो हम लोग जाएंगे भारत सरकार में, ये गारंटी के साथ कहते हैं कि भारत सरकार भी वेट कर रही है। विकसित भारत का सपने का आधार पॉजिटिव मीडिया बनेगा। इसलिए हमारे जितने भी साथी हैं 10 वर्कशॉप पॉजिटिव मीडिया के हम करा चुके हैं। यहीं पर मारवाह जी गवाह हैं। यहाँ पे 100 पत्रकारों को बुलाकर और मीटिंग की गई थी। वो टेक्निकल वर्कशॉप था क्योंकि यूट्यूब आ गया था। 2018 की बात कर रहे हैं। उस समय एमएस बिट्टा जी ने देशभक्ति का पाठ पत्रकारों को पढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, जो कि आरजेएस फैमिली के सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के जन्मदाता हैं। यह आंदोलन शब्द जिंदा शहीद एमएस बिट्टा जी ने दिया, जो प्रधानमंत्री ने उनको दिया, नरसिंह राव जी ने, ये जिंदा शहीद का। हम लोगों के पास वो कुंडलिनी जागृत करने का कौन सा तंत्र है? पत्रकारिता सिर्फ आंखों से दिखाई दे तो वो जनता पे प्रभाव नहीं डालती है, हमारे दिल को छुए। और पत्रकारिता में हमारी लेखनी अगर दिल से चलेगी तो वो दिल तक पहुंचेगी। इसलिए हम अखबार कूड़ा ना बनाएं। यही आंदोलन का स्वरूप है कि हमारे अखबार, इसलिए ये पुस्तक लाई गई। इस पुस्तक को देखिए, इस पुस्तक में आर्टिकल भी उन्हीं लोगों के हैं। और सबसे खुशी की बात है कि कंटिन्यूअस सेकंड टाइम मारवाह जी ने स्वीकार किया ऐसी किताब को फॉरवर्ड करने के लिए। सर एक बार मारवाह जी का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अपना नाम इस संस्थान से जोड़ने के लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना नाम पॉजिटिव मीडिया के साथ जोड़ दिया। तो आप अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो है आर्थिक विषमताओं के चलते पत्रकार जो है, जो मनोहर मनोज जी बहुत कुछ इसमें विशारद हासिल, संवैधानिक दर्जा की बात ये उठा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद ये लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे कि संवैधानिक दर्जा के लिए कितने लोग तैयार हैं। अलग अलग प्रोफेशन में जो कुछ भी सुविधाएं सरकार दे रही है, विकसित भारत के लिए लोकतंत्र के प्रहरी को मजबूत होना जरूरी है। और इसके लिए सरकार और समाज को आगे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग ही सरकार का निर्माण करते हैं, और हम भारत के लोग ही पत्रकारों को जो उनकी समस्या है उसको सरकार और समाज मिलकर दूर करें और उनको प्रेरित करें, उनका मनोबल बढ़ाए। और इसीलिए पॉजिटिव मीडिया आया है। और पॉजिटिव मीडिया केवल कार्यक्रम नहीं, वेबिनार के रूप में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, 1.5-2 घंटे देकर यह किताब का निर्माण किया गया है। एक किताब नहीं, ये जीवंत पॉजिटिविटी का प्रमाण है। ये 132 पेज की किताब जो है, ये 205वां अंक, 205वां अंक ये हो रहा है, यानी 205 दिन। आज तो पूरे आधे दिन का समय आपने दिया। 1.5-2 घंटे समय देश के लिए हर रविवार पूरे देश जुड़ता है। और उसके बाद हम लोग एक विषय लेते हैं। विषय क्या होता है? पॉजिटिव मीडिया।
हमारे अतीत का सम्मान करते हुए ये हम लोग वर्तमान में प्रसन्न रहकर, इसलिए लाफ्टर क्लब के लोगों को जोड़ा हुआ है, क्योंकि प्रसन्न नहीं रहेंगे तो नेगेटिविटी दूर नहीं हो सकती है। जगत गुरु लाफ्टर क्लब के जो ही जो पार्कों में आप सुनते हैं, जगत गुरु आए थे पिछले संडे को डॉक्टर मदन कटारिया जी। अब इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जो है वो जा रहे हैं कि 10वां राज्य गुजरात होगा। प्रधानमंत्री के प्रदेश में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि 10 दिनों तक हम ये देखें कि प्रधानमंत्री जी आपका प्रदेश कैसा है, आपने देश को इस तरह से विकसित भारत का जो सपना दिया है, हम पॉजिटिव मीडिया के लोग भी कुछ सीखें, जानें, समझें और फिर दिल्ली आकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को बताएं कि गुजरात हम लोगों ने देखा है, गुजरात ऐसा है वैसा है, और अन्य प्रदेश में भी जाते हैं, 10वां राज्य गुजरात है। तो विकसित भारत का आधार बनेगा पॉजिटिव मीडिया, यही कहना चाहते हैं और हर बार कहेंगे, बार बार कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने पत्रकारिता में रीइन्वेंट कीजिए। मैं बहुत सारे चेहरे नोन लग रहे हैं, पत्रकारिता को रीइन्वेंट कीजिए, समय आ गया है, ये इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है पॉजिटिव मीडिया का। मैं कहता हूं ये नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी शख्सियत, इतने राजदूत डॉक्टर संदीप मारवाह जी के सौजन्य से आपने तो सोचा नहीं था। सोचा था आपने? बताइए मुझे, आपने सोचा था? इतने एम्बेसडर, अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आज पॉजिटिव मीडिया को समर्थन करने के लिए अगर मंच पर विराजमान है, तो आप समझिए कि आपके सपने पूरे करने के लिए वर्ल्ड फैमिली, पूरा फैमिली तैयार है। इसलिए अतीत का सम्मान कीजिए। अपने घर में जितने भी महापुरुष हैं, इसमें देखिए पेजेस होते हैं जिसमें आपके ही दिवंगत परिजनों को श्रद्धांजलि दी जाती है, और वर्तमान में प्रसन्न होकर पत्रकारिता दिल से कीजिए ताकि दिल तक पहुंचे। आपका अखबार कूड़ा ना बने। लोग कटिंग रखते हैं, जो अच्छा लगता है ना, कटिंग रखते हैं। अगर लोग कटिंग रखना छोड़ दिए हैं तो आप ऐसा क्या लिखें? आप पढ़िए। देखिए बगल में, लाइब्रेरी के बगल में, लाइब्रेरी के बगल में ये कार्यक्रम हो रहा है, मारवाह स्टूडियो के लाइब्रेरी के बगल में, और यहाँ पर दूसरा कार्यक्रम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का हो रहा है। और ये किताब लाइब्रेरी में, पहली किताब भी है, पहली किताब जो वॉल्यूम 1 है वो भी लाइब्रेरी में है। हम लोग ने संदीप मारवाह जी को प्रदान किया था, और लाइब्रेरी के लिए भी हम लोग स्पेशल प्रदान करते हैं कि आइए सर, लाइब्रेरी भी यही है। हाँ जी जी जी, आइए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरह से हम लोगों ने इस किताब को निकाला है, इसमें आपके सकारात्मक कार्यों का वर्णन है। जितने कार्यक्रम होते हैं, ये 100 अमृतकाल का सकारात्मक भारत का 205वां अंक है, यानी 205 दिन आप लोग बैठे हैं वेबिनार या फिजिकल कार्यक्रम में, तब ये किताब तैयार होती है। इसमें सकारात्मक कार्यों का ही जिक्र है। पॉजिटिव मीडिया अलग अलग विभिन्न सब्जेक्ट होते हैं। इससे पहले 163 बैठकें आरजेएस ने किया है, सकारात्मक बैठक। और आप लोगों को फिर हम कहना चाहेंगे कि पॉजिटिविटी को समझने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि ये आपके घर के लिए भी फायदेमंद है, आपके खुद के लिए है, आपके हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन्स निकालता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और एम्बेसडर साहब और संदीप मारवाह जी का, और जो हमारे पैनलिस्ट आए थे, जिन लोगों ने यहाँ पर माहौल बनाया, जितने अवार्डी आ सके यहाँ पर, और हमारे इस किताब के पीछे जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो बहुत थोड़ी संख्या में हैं लेकिन वो आरजेसियंस हैं, उनको भी लगा कि नहीं, किताब को सहयोग करना चाहिए, तब ये किताब आ रही है। अगली किताब हर महीने, हर साल 2 किताबें आएंगी, आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। 2047 तक का ये प्रण है, और विकसित भारत का आधार सकारात्मक पत्रकारिता बनेगी बनेगी बनेगी। जय। लीजिए मन्ना साहब, 2 लाइनों के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। एक जोर एनर्जी के साथ सभी बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।